व्यशेमहि देवहितं यदायुः। હવે તમારે બોલવાનું. મંગલાચરણમ પાડોશમાં થી કોઈને બૂમ પાડવી હોય તો કેવી રીતે બૂમ પાડો છો? હે, જેટલી શક્તિ હોય એટલી વાપરો છો ને? હે, તો આ તો મંગલાચરણનો મંત્ર છે. આનો અર્થ શું થાય છે ખબર છે? ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ. ભદ્ર એટલે શુભ, કર્ણેભિઃ કાનથી તમે સારું સાંભળો. ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા. શૃણુ સાંભળવું. હે, ભદ્રમ પશ્યેમાક્ષભિર્જત્રાઃ. આંખોથી તમે સારું જ જુઓ. સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુભાગ્વમ સસ્તર્ણુભિઃ. સદાને માટે તમે શુભ તમામ અંગોથી શુભ કાર્ય સંપન્ન કરતા રહો. એવી વ્યશેમહિ દેવહિતમ યદાયુઃ. સદાય દેવતાઓ તમારા ઉપર ખુશ રહે, પ્રસન્ન રહે. પૂરા શરીરથી તમે શુભ અને મંગલમય કાર્ય કરો. એનો આ અર્થ છે. બરાબર છે? એના પછી શું છે? પવિત્રીકરણ. બરાબર? હવે હેડિંગ મારો તમારી ચોપડામાં. પવિત્રીકરણ. શા માટે પવિત્રીકરણ કરવાનું છે એ લખી દઈએ. પવિત્રીકરણનો મતલબ, ચલો બેટા લખો જલ્દી જલ્દી. પવિત્રીકરણનો મતલબ પાત્રતાને વિકસિત કરવી. પાત્રતાને વિકસિત કરવી. જ્યાં સુધી પાત્રતાને વિકસિત નહીં કરીએ ત્યાં સુધી દેવત્વને ધારણ કરી શકાય નહીં. ત્યાં સુધી દેવત્વને ધારણ કરી શકાય નહીં. પાત્રતાને વિકસિત કરવી એનો મતલબ ખબર? બોલો બોલો. સરસ. સરસ. વ્યક્તિત્વનો વિકાસ. પાત્રતાનો મતલબ છે વ્યક્તિત્વનો વિકાસ. પાત્ર ઊંધું હોય તો એમાં કોઈ વસ્તુ ન ભરી શકાય. મતલબ કે પાત્રને સીધું કરવું પડે છે, વ્યક્તિત્વને નિખારવું પડે છે. જે તે વ્યક્તિ, એટલે તમારી પાત્રતા કેવી, બરાબર થઈ કે નહીં, એટલે દર વર્ષે તમારી શું લેવાય છે? એન્યુઅલ એક્ઝામ લેવાય છે કે હવે અને બીજા ધોરણમાંથી ત્રીજા ધોરણમાં મોકલવો કે નહીં, ત્રીજામાંથી ચોથામાં મોકલવો કે નહીં, ચોથામાંથી પાંચમામાં જવા દેવો કે નહીં. એને એ શું કરે છે? તમને તપાસે છે તમારી બરાબર પાત્રતા થઈ ગઈ કે નહીં, હવે તમે આગળના ધોરણમાં ભણી શકશો કે નહીં ભણી શકો, એ તમને તરાસે છે. એમ પરમાત્મા પણ જે યજ્ઞ કરે ને એને ભગવાન ખૂબ વરદાન આપવા માંગે છે, પણ પહેલામાં પહેલું શું જુએ? પાત્રતા જુએ. એટલે પહેલામાં પહેલી વિધિ આવી પવિત્રીકરણની. પવિત્રીકરણની વિધિમાં 1 ચમચી જલ હાથમાં લેવાનું છે. ડાબા હાથમાં 1 ચમચી જલ લઈ, ખાલી બોટલ નહીં, ખાલી
એ તમે આખું બોટલ ખાલી કરી દેશો. જમણો હાથ ઉપર ઢાંકી દો. મંત્રની બુક ખુલ્લી રાખવાની. બસ આ એટલે કરાવું છું જોડે પ્રેક્ટિકલ, એટલે તમને પૂરેપૂરું જ ખ્યાલ આવી જાય. ડાબા હાથમાં પાણી લીધી, જમણો હાથ ઉપર ઢાંકી દીધો. મંત્ર બોલવાનો છે. અહીંયાથી પહેલા મંત્ર બોલે ને તમે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લો. પવિત્રીકરણમ ઓમ અપવિત્રઃ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાં ગતોપી વા યહ સ્મરેત પુંડરીકાક્ષં સભાયાભ્યંતરઃ શુચિઃ. ઓમ પુનાતુ પુંડરીકાક્ષઃ શરીર ઉપર પુનાતુ પુંડરીકાક્ષઃ પુનાતુ. આપને પવિત્ર થઈ ગયા. બરાબર. ચલો હવે તમારે બોલવાનું છે. ધ્યાન રાખીને બોલજો. ધીમે રહીને. સરસ. પવિત્રીકરણ સરસ. આપનો આ કાર્યક્રમ, આપની આ બીજી બેઠક અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ. આપના માટે ચાની વ્યવસ્થા કરેલી છે. દિશાધારા તરફ આપને આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે ખૂબ ખૂબ અહોભાગ્ય છે આપનું કે પ્રભુની અનન્ય કૃપાને જ્યારે જીવાત્મા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એક સાચી દિશાધારા તેને જીવનમાં મળી જાય છે. સમય આપણને એ બતાવે છે વરસાદમાંથી વરસતું બુંદ કોના સંગમાં જાય છે તે પ્રમાણે તેની મહત્વતા વધતી જાય છે. એક બુંદ પડે છે ગટરમાં અને ગટરમાં મિલન થઈ જવાથી એનું કોઈ મૂલ્ય નથી રહેતું, ગટર બની જાય છે. એક બુંદ પડે છે વાસમાં તો વંશલોચન બની જાય છે. એક બુંદ પડે છે છીપમાં તો એ મોતી બની જાય છે. એક બુંદ પડે છે કેડમાં તો એ કપૂર બની જાય છે. સવાલ એટલો છે કે આપણને પણ પરમાત્માએ સુંદર માનવ જીવન બક્ષ્યું છે. આ માનવ જીવનને કોના સંગમાં જોડવું જોઈએ અને સંગમાં જોડાયા પછી આપના ભીતરની અંદર કેવી અનન્ય ભાવનાઓ અને કેવી શક્તિઓથી ઉભાર લાવવો જોઈએ એ વાતને ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બેટા, સંસારમાં રહેલા જીવને જો કદાચ કુસંગ થઈ જશે તો એ કુસંગથી એનું જીવન આધ્યાત્મિક ચેતનાથી એને ખૂબ ઘણી મોટી ખોટ અનુભવવી પડશે. આધ્યાત્મિકતાનો હાસ થાય છે જો એ જીવનમાં કુસંગને લે છે ત્યારે, અને એની જે આધ્યાત્મિક ચેતના છે એ નાશ પામે છે અને એ આધ્યાત્મિક ચેતનાને ઠેસ પહોંચવાને કારણે ધીમે 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 કરતા વ્યક્તિત્વ પતન તરફ પ્રયાણ કરવા લાગે છે. આ વ્યક્તિત્વને પતન તરફ જતું અટકાવવા માટે કુસંગ નહીં પરંતુ સંસારમાં આવેલા જીવાત્માએ હર પળ જાગૃત બની અને સુસંગ, સારો સંગ એને કરવો જોઈએ. જ્યારે એ સંગ સારો લઈ અને ચાલે છે ત્યારે અવશ્ય એના જીવનને એક ઉભાર મળે છે, એક નવી દિશાધારા મળે છે. સારો સંગ કરવાને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે વરસેલું બુંદ મોતીમાં પડે, છીપમાં પડે છે અને પોતાને મોતી બનાવી દે છે. એમ આપનું જીવન પણ આજે એક સમય સંજોગોને આધીન પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની એક સૂક્ષ્મ સંરક્ષણમાં
આપણને બેસવાનું એક સૌભાગ્ય મળ્યું છે ત્યારે આજે એ આપણે અંતઃકરણથી યાદ કરીએ, સ્મરણ કરીએ કે હે ગુરુદેવ, અમે તો એક બુંદ જેવા છીએ, પરંતુ આજે આપની કૃપાને પાત્ર બની એક છીપની અંદર આ બુંદ પડ્યું છે. અવશ્ય એક વિશ્વાસ જરૂર છે અમને કે અમે એક મોતી બનીએ. જ્યારે સાચું મોતી કોઈના હાથમાં આવે છે ત્યારે તેના જીવનને અનેક પ્રકારની દલદલ સ્થિતિમાંથી ઉભાર લાવી દે છે. આપનું જીવન પણ એવી દલદલ સ્થિતિમાંથી એક દિવ્ય ઉભાર આવી જાય અને એ દિવ્ય ઉભાર આપના જીવનને જ નહીં, એક જીવન ઊંચું ઉઠી જાય, એક વ્યક્તિત્વ ઉપર ઉઠી જાય, ત્યારે એક વ્યક્તિત્વ ઉપર ઉઠવાથી અનેક જીવાત્માઓનું કલ્યાણ સધાઈ જાય, અનેક જીવાત્માઓનું કલ્યાણ સધાઈ જાય. આપના દ્વારા એવી દૈવી પ્રેરણાઓ સૌને પ્રાપ્ત થાય, સૌનું જીવન એવા શુભ સંસ્કારોથી ખૂબ ઉન્નત બને, શ્રેષ્ઠ બને, એવી મહાકાલ યુગ ઋષિને પ્રાર્થના કરીએ અને એ પ્રાર્થના ગુરુદેવ જરૂર સ્વીકારશે. કારણ આપણને એક સુયોગ મળ્યો, એક સુસંગ થયો છે. અને કેવો સંગ? જે સંગને એક વિશેષ દિશા મળે, એક વિશેષ ફોર્સ મળે, એક ચિંતનની દિશાધારા આપની એક સાચી મળી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે ભગવાને માનસને એટલી મોટી ઊંચી દિવ્ય ભેટ આપી છે અને એ ભેટ એટલે માણસ જેવું વિચાર કરે એવું કર્મ કરી શકે છે. એ મોટામાં મોટી ભેટ છે. આપણને વિચાર આવે છે કે મારે બજારમાં જઈ અને સરસ મજાનો ડ્રેસ ખરીદવો છે તો આપણે ડ્રેસ ખરીદી શકીએ છીએ. આપણને વિચાર આવે છે, આપણે કામ કરી શકીએ છીએ. આપણને વિચાર આવે છે કે મારે સરસ મજાની આજે માલપુઆ ખાવા છે કે ખીર ખાવી છે તો આપણે બનાવીને ખાઈ શકીએ છીએ. વિચાર પ્રમાણે કર્મ, વિચાર પ્રમાણે કાર્ય કરી અને આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. કદાચ કોઈ હાથીને વિચાર આવે કે મારે સરસ મજાના કપડાં પહેરવા છે તો કદાચ બજારમાં જઈને કપડાં હાથી નહીં લઈ શકે. દુકાન સામે ઊભો હશે, સૂંઢ હલાવ્યા કરશે, કદાચ દુકાનને ખેદાન મેદાન કરી નાખશે, પણ ખરીદી નહીં શકે. આપણી અંદર ભરેલા આ સદવિચારોને, સદસંસ્કારોને અને ભગવાને આપેલી અનમોલ ભેટને હવે આપણે સાચી દિશામાં લઈ જઈશું અને એ સાચી દિશા તરફ આપણને લઈ જવા માટે જ શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી એક દિવ્ય ગુરુ સંદેશને લઈ અને પરમાદરણીય શ્રદ્ધેય કેપી દુબેજી ભાઈ સાહેબ પધાર્યા છે. તો આવો હવે તેમની એ દિવ્ય મુખરિત થતી વાણીને આપણે સાંભળીએ અને આત્મસાત કરીએ કે વાસ્તવમાં મારા જીવનનું સૂત્ર શું હોઈ શકે, વાસ્તવમાં મારી દિશાધારા શું હોઈ શકે. आइए बात शुरू करें. उसके पूर्व में एक बार पुनः गायत्री महामंत्र का उद्घोष करें. ये वो मंत्र है जिसने कभी प्राचीन काल में भारत की कुंडली को जगाया था और ये वही मंत्र है जिसके माध्यम से पूज्य गुरुवर ने संपूर्ण विश्व की कुंडलनी जागरण का शंखनाद किया है. हम भी उसी चेतना के घटक हैं, विराट ब्रह्म के हम भी प्रतिनिधि हैं. इसलिए इस दिव्य कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल हों. अनुभव करें कि हमारे भीतर दिव्य चेतना का प्रवाह मेरुदंड से लेकर के मूलाधार तक और मूलाधार से सहस्त्रार तक पूरे मेरुदंड में प्रवाहित हो रहा है. जगत के कण कण में व्याप्त, सप्तलोकों में व्याप्त भगवान का दिव्य प्रवाह हम सबके भीतर प्रवाहित हो रहा है. उस प्राण चेतना का अनुभव करते हुए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आज की सभा में शिविर का संचालन कर रही हैं हमारी श्रद्धेय जी रश्मि बहन और हमारी बहनें, सभा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ भाई, जिनने हम सबको इस मिशन के सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने का गुर मंत्र सिखाया, ऐसे सभी बड़े भाई, हमारी बड़ी बहनें, माताएं, और इस युग का, इस वर्तमान समय का गौरव, श्रृंगार, शक्ति, सब कुछ को धारण करने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारी छोटी छोटी बहनें, युवतियां, भाइयों बहनों, ये बड़ा दुर्लभ सुयोग है कि जीवन में कुछ अच्छा करने का सानिध्य, कोई प्रेरणा, कोई मार्गदर्शन मिलता है। आज ऐसा कुछ समय है कि हम आज से लेकर के 25 तारीख तक परस्पर विचार विमर्श करके एक दूसरे के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करेंगे। इसी प्रक्रिया को हमारे प्राचीन भारत में वैदिक काल में उपनिषद कहा जाता था। ज्ञान की वो चर्चा जो आचार्यों के समीप बैठकर की जाती थी। जिज्ञासु अपना प्रश्न रखता था और आचार्य, ज्ञाता, विद्वान उसका समाधान करता था। ये बात सिर्फ वाणी तक नहीं थी, वरन ये व्यवहार और अनुभव की बात थी। कोई शिष्य आचार्य से पूछता था, भगवान आचार्य मुझे ये बताइए, परमात्मा और जीवात्मा में क्या संबंध है? ये प्रकृति, जीव और परमात्मा का त्रिविध त्रय जो है किस तरह काम करता है? इनके आपसी संबंध, रिश्ते क्या हैं? तो अगर शब्द की बात होती तो कोई पुस्तक में भी इस चीज को पढ़ सकता था, जैसा इन दिनों हम पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं था। वहां एक प्रक्रिया घटित होती थी जिसका नाम था उपनिषद। वहां समीप बैठकर ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया होती थी। आचार्य अपने जीवन के अनुभव से शिष्य को, जिज्ञासु को इस बात का समाधान करता था कि जीव और ब्रह्म के बीच क्या संबंध है। ये ज्ञान ऐसा था जो अनुभूति जन्य था, इसलिए सीधे सीधे शिष्य और आचार्य के हृदय का संवाद था, वाणी का संवाद नहीं था। वो अपने अनुभव से अनुभूति कराता था कि इस रहस्य का क्या आशय है। इसी को हमारे यहाँ उपनिषद कहा जाता। जीवन की धाराएं बदली, जीवन के क्षेत्र बदले, जीवन और व्यापक हो गया, विस्तार हो गया जीवन का। पुराने समय में हम किसी एक क्षेत्र में निवास करते थे, अब दुनिया के कोने कोने से हम रहते हैं, परंतु एक क्षण में, कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटे में, कुछ ही अवधि में हम एक साथ हो जाते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गईं। इसलिए वर्तमान में ये जो सभा है, ये सभा उसी तरह है जैसे कभी शिष्य और आचार्य के बीच उपनिषद का संबंध होता था। आप दीदी के सानिध्य में नित्य और निरंतर ज्ञान की प्रेरणाएं पा रही हैं। तो बहनों, आओ फिर कुछ थोड़ा सा और विचार करके समझें कि जीवन क्या है, इस जीवन के साथ जुड़े हुए विषय क्या हैं। आप सबने एक नारी के रूप में जन्म लिया है, तो नारी क्या है और नारी से जुड़े हुए कर्तव्य और धर्म क्या है। वंदनीय माता जी ने बहुत कुछ प्रयास किया और एक ऐसे समग्र स्वरूप का चिंतन किया कि आने वाले युगों में नारी को फिर से दिव्यता के महान सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए। वंदनीय माता जी ने नारी जागरण आंदोलन, महिला जागृति अभियान चलाया
परम पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा पाई और महिला जागृति अभियान का शंखनाद कर दिया। बहनों, क्या कारण था, क्या वजह थी इसकी कि जिसके कारण युग निर्माण मिशन, जो बहुत ही आध्यात्मिक मिशन था, जिसकी नींव में तपश्चर्या थी, जिसकी नींव में वेद और उपनिषद थे, उस महान अभियान को, इस आध्यात्मिक आंदोलन को महिला जागृति के लिए समर्पित करना पड़ा। तो गुरुवर के वो क्षण, वो दिन याद आते हैं। वंदनीय माता जी बताती थीं कि जब कभी किसी बहन को दहेज के नाम पर अगर किसी ने जला दिया या प्रताड़ित कर दिया तो उस रात्रि गुरुवर सोते नहीं थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार लगी रहती थी और वो रोते रहते थे, सो नहीं पाते थे उस दिन। वो कहते थे, यहाँ तक कहा गया, मुझे स्मरण आता है एक घटना, कानपुर की घटना थी। एक शिक्षक थे, उनकी 3 लड़कियां थीं, विवाह की योग्य हो गई तीनों बच्चियां, पढ़ लिख करके सुशील संस्कारवान बन गईं। माता पिता ने अपने जीवन का जो स्वत्व था, जो उनके पास था, सब लगाया, बच्चियों को सुसंस्कारवान पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। शादी के लिए पिता जगह जगह मारे फिरते, परंतु विवाह की बात न बनती। जिसके पास जाते दहेज की इतनी मोटी रकम मांगी जाती कि पिताजी हिम्मत ही ना कर पाते। शाम को फिर लौट कर आते हताश निराश। बच्चियां देखती कि पिता प्रतिदिन दुखी होकर लौटते हैं। ऐसा वर्ष दर वर्ष ऐसा क्रम चलता रहा। बच्चियों से अपने पिता और मां की पीड़ा देखी नहीं गई। माँ और पिता जब कभी बात करते तो उसी दुख में डूबे रहते कि बच्चियां जवान हो गई हैं, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, इतना पैसा नहीं है कि दहेज में दे पाऊं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी पिता कहता कि ऐसा मन करता है कि सबको जहर खिला दूं और मैं भी जहर खा के मर जाऊं। बच्चियों ने ये बात सुनी कि पिता का दर्द जो है, हमारी विवाह की समस्या पिता का मुख्य कारण है। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक दिन तीनों बच्चियों ने पंखे पे लटक गईं। एक साथ 3 बच्चियों ने गले में फांसी लगाकर पंखे पर अपने जीवन की आहुति दे दी। जब ये खबर पेपर में गुरुजी ने पढ़ी, गुरुदेव ने, कहते हैं गुरुदेव उस रात्रि भर विश्राम नहीं कर पाए, सो नहीं पाए, रोते रहे और एक शब्द कहा। जब कभी भी ऐसी घटना घटती तो वो एक ही बात कहते थे, जीजी को शैलू बोलते थे। कहते थे कि एक शैलू और चली गई। आप विचार कर सकते हैं कि हर मरने वाली, दहेज की बलिवेदी पर चढ़ने वाली उस बच्ची के भीतर गुरुजी अपनी पुत्री का रूप देखते थे। ये थी वो वेदना जिसने उनको एक महान कार्य आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा होगा। बहनों, मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था, अगर आप नारी की गौरव गरिमा की बात करें तो प्राचीन भारत बहुत समृद्ध था। अथर्ववेद का पहला मंत्र है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। अथर्ववेद का पहला मंत्र स्त्री की वंदना से शुरू होता है, शन्नो देवी रविष्टया। प्रथम मंत्र अथर्ववेद का मंत्र वंदना करता है कि हम उस महाशक्ति, आदिशक्ति, जगत जननी की वंदना करते हैं। यहां से हमारा वेद प्रारंभ हो रहा है, अथर्ववेद, जो हमारी भारतीय जीवन की आचार संहिता है, जिसमें कृषि, राजनीति, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ समाया है। उस वेद का पहला मंत्र स्त्री की वंदना से है। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि वेद मंत्रों की दृष्टा हमारी बहनें, बहुत बहनें रही हैं, स्त्रियां रही हैं। वो ब्रह्मवादिनी कहलाई। प्राचीन काल बहुत गौरवशाली रहा। बहनों का जीवन बहुत, अतीत हमारा बहुत ही गौरव से भरा रहा। बड़े बड़े कार्य बहनों ने किए, और ना सिर्फ तब किए, वरन तब से लेकर अब तक आप विचार करोगे तो आपको ढेर सारी बहनें मिलेंगी, महिलाएं, नारियां मिलेंगी जिनने अद्भुत कार्य किए। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय जैसा लिखा, नारियों की वंदना करते हुए। वो देश की महान नारियां, विश्व की महान नारियां, जिनने नारी जगत को, नारी शक्ति को, नारी जाति को एक ऊंचे स्थान तक पहुंचाया। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासन संचालन का क्षेत्र हो। आप सबने सुना होगा अहिल्याबाई का नाम। अहिल्याबाई, जब उनके पिता, उनके
पति का देहावसान हो गया, अहिल्याबाई ने राज्य का शासन संभाला, इंदौर का राज परिवार। और अहिल्याबाई ने संपूर्ण देश में इतने ढेर सारे संस्थान बनाए। आज आप कहीं भी जाइए देश के किसी भी तीर्थ पर, अहिल्याबाई का एक धर्मशाला जरूर मिलेगी। बड़े बड़े मंदिरों का पुनरुत्थान कराया, यहाँ तक कि भगवान काशी के भगवान विश्वनाथ का मंदिर आप जाएं, वहाँ पर उनका निर्माण किया है। जितने हमारे शिवलिंग थे, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग थे, वहाँ के मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ तक कि हम रामेश्वरम में गए तो वहाँ देखा हमने अहिल्याबाई ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। आप कल्पना कर सकते हैं एक नारी की, जो इतनी पवित्र नारी थी कि उसने धर्म क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया था। भाइयों बहनों, यह देश ऐसी नारियों का देश रहा है। और ये नहीं कि यह कोई पुरानी बात थी, ये परंपरा आज तक अनवरत जारी है। वर्तमान में भी आपको ढेर सारी ऐसी नारियां, स्त्रियां मिलेंगी जिनने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिक्षा जगत में, विज्ञान के जगत में आप सब नित्य नियमित रूप से पढ़ती हैं। अभी हम देखते हैं सुनीता विलियम का नाम हमारी बच्चियां बहुत जानती हैं। आप जानते हैं जो बहुत बड़ी धावक हुई, उसका नाम आप जानते हैं। आप टेसी थॉमस का नाम जानते हैं, जिसने इसरो में रह करके आज वो मिसाइल लेडी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा नहीं कि प्राचीन भारतीय गौरवशाली था, अभी भी जो समस्याएं खड़ी हुई वो मध्यकाल के दौरान थी। आप देखेंगे मध्यकाल के संकट को तो बड़ी विचित्र बात दिखाई देती है। दो अलग तरह के संविधान बने, दो अलग तरह की संहिताएं बनाई गई, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। पुरुष एक से अनेक व्यवहार कर सकता था, एक से अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखता था। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म की मर्यादा थी, परंतु पुरुष के लिए पत्नीव्रत धर्म का कोई उल्लेख नहीं था। आचार विचार में पुरुष ये काम करेगा, स्त्री ये काम करेगी, ऐसे नियम मर्यादाएं संहिताओं का निर्माण किया गया कि एक बिल्कुल सीधी सीधी लाइन अलग अलग दिखाई दी। और धीरे धीरे अवनति के मार्ग पर चलते चलते स्त्री देवी से सिंहासन से उतरकर कामनी, रमणी, भोग्या, अबला के नाम से जानी जाने लगी। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मनुष्य का पुरुष का आश्रय जरूरी है। और अपने आश्रय में उसको रखने के इस बहाने, इस तरह की भावना के बहाने उन्होंने स्त्री को अपने कब्जे में कर लिया। उसका सारा जीवन परावलंबी हो गया, कोई काम अपने निर्णय से नहीं कर पाती। शिक्षा के क्षेत्र में उसको अयोग्य सिद्ध कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अंधकार युग में क्या क्या हुआ। पुरानी बात, यवनों की बात कहें तो जब यवन हमारे देश में आए तो उन्होंने स्त्री को सौंदर्य की, भोग की वस्तु बनाया। और हमारे यहाँ जो गुरुजी लिखते हैं कि ये जो जेवर का प्रचलन है ना, ये कान के और गले के और हाथ के और फलाने फूल और ये ढिमके, ये जो जेवर का प्रचलन है ये यवनों की देन है हमारे यहाँ। यवनों ने स्त्री का श्रृंगार करना सिखाया, 16 श्रृंगार करे स्त्री, क्योंकि उसके लिए वो रमणीय थी, वो कमनीय थी, वो उनकी कामेच्छा पूर्ति करने की एक वस्तु मात्र थी। उनने ये प्रयोग किए और एक नया स्वरूप स्त्री का रूप दे दिया। स्त्री भी अपने सोने के हार पहन करके, हाथ में सोने के कंगन पहन करके इस सोने के कंगनों में दबी रह गई। उसने स्वयं ही दासता स्वीकार कर ली और अपने को वैसा ही प्रदर्शित करने लगी। फिर हमारे यहाँ यूरोप का, फिर हमारे यहाँ मुगलों का समय आया, इस्लाम आया। इस्लाम ने भी कुछ इसी तरह की बात करी। वहाँ स्त्री को कोई भगवान का दर्जा नहीं, स्त्री में कोई आत्मा नहीं है। स्त्री उपभोग की वस्तु है, उपयोग की वस्तु है। जितना मर्जी हो उसका उपयोग करो, बस संतान उत्पादन के लिए है वो। इसके अलावा और कोई बात स्त्री के विषय में नहीं रखी गई। उसको पर्दे में रखो, उसको कोई चीज की अनुमति प्रदान मत करो, उसको संपत्ति में भागीदार मत बनाओ। इस तरह से इस्लाम ने स्त्री का फिर हनन किया और हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा हमारे यहाँ आ गई। स्त्री को घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। अंग्रेज आए, 200 वर्ष रहे। अंग्रेजों के यहाँ एक परंपरा थी, अंग्रेजों की संस्कृति थी कि वहाँ स्त्री को वस्तु माना जाता है। और एक घोषणा की वहाँ का जो विचारक था अरस्तु, उस अरिस्टोटल ने एक बात रखी।
उसने कहा स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, उसने एक नई घोषणा कर दी। उसने कहा स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी हमारे